Hello everyone, I welcome you all in this lecture. Today we will see the mixing of liquids. Okay, in last lecture we have studied the introductory part about mixing and we have started with the solid mixing. So today we will start with the mixing of fluids. So first we will start with the liquid mixture and their classification. Okay, so generally they are classified into three types of liquids. First is the miscible liquids, then partially miscible liquids, and last is the immiscible liquids. Okay, so this classification is based on their miscibility and their proportions. Okay, means in what proportions they are miscible with the another system or another phase. Okay, so first of all, mixing of liquids is done to prepare the true solutions or the emulsions. Okay, so mixing is required to dissolve one miscible liquid into another miscible liquid to form a true solutions. Okay, so generally for making emulsion, the mixing of two immiscible liquids are done by using the shear force or by applying the pressure. Okay, तो एक तो आइडियली अगर दो मिसिबल लिक्विड है तो उसको मिक्स करने में कोई हमें प्रॉब्लम नहीं जाएगा, बट अगर दोनों इमिसिबल है और दोनों को एक सिस्टम में रखना है, सो दैट इज टर्म्ड एज द इमल्शन. वो डोजेस फॉर्म को हम क्या बोलेंगे, इमल्शन, और जिसमें शेयर फोर्स अप्लाई करके हम उन दो सिस्टम्स को क्या करेंगे, मिक्स करेंगे. ओके, और जनरली मिक्सिंग क्यों इंपॉर्टेंट है, दैट इज मिक्सिंग ऑफ फ्लूइड्स, मिक्सिंग ऑफ लिक्विड्स क्यों इंपॉर्टेंट है, टू प्रिपेयर आइदर द ट्रू सॉल्यूशन और द इमल्शंस. ओके, सो नाउ मूव टुवर्ड्स द क्लासिफिकेशन ऑफ दिस लिक्विड मिक्सचर. सो फर्स्ट इज द मिसिबल लिक्विड्स. तो ऐसे कौन से लिक्विड है जिनको हम बोल सकते हैं कि ये लिक्विड मिसिबल लिक्विड्स है. ओके, सो दीज आर मिसिबल इन ऑल प्रपोर्शंस. की जो सपोज हमने 10 ml के दो लिक्विड्स लिए हैं और उसको हमें मिक्स करना है, तो क्या ईच एंड एवरी ml ऑफ द 10 ml is easily miscible with the another liquid, means in each single proportion it is easily miscible with the another liquid. Okay, so example is the ethyl alcohol and water, because ethyl alcohol and water are miscible with each other in every proportions. Okay, so next is the partially miscible liquid, means what, कि they are miscible with each other at one proportion, that's why it is referred as the partially miscible. मतलब क्या, completely miscible भी नहीं है और पूरी तरह से immiscible भी नहीं है. कहीं तो एक पोर्शन में वो एक दूसरे में जाके मिक्स हो सकते हैं, मिसिबल हो सकते हैं, that's why they are referred as the partially miscible liquids. Okay, so these are miscible in one another at one proportion. Then their miscibility depends on the temperature and pressure. मतलब क्या होता है कि उनको भी हम कहीं ना कहीं कोई एक्सटर्नल पैरामीटर यूज करके, जैसे कि वो टेम्परेचर रहेगा, प्रेशर रहेगा, उनको यूज करके हम क्या कर रहे हैं, उनको मिक्स कर रहे हैं. ओके, सो examples are the paracresol and water are miscible at certain portions, means at a few proportions. Okay, few proportion में वो क्या होते हैं, मिक्स होते हैं, that's why they are referred as the partially miscible liquids. Okay, next is the immiscible liquid, जो कि कौन से भी proportion में एक दूसरे से मिक्स नहीं होंगे. Okay, so these are not miscible in any proportion. Examples are the vegetable oils and waters are not miscible. Okay, generally क्या होता है, इमल्शन क्या है, दो फेज का सिस्टम है. ओके, दो फेज कौन से, ऑयल फेज और वाटर फेज. मतलब आइडियली हम देखें तो ऑयल और वाटर एक दूसरे में मिक्स होते हैं क्या, नहीं, पर फिर भी हम उनको क्या करते हैं, शेयर फोर्स अप्लाई करके उनको टेंड करते हैं कि एक सिस्टम के अंदर आपको रहना ही है. मतलब ये क्या हो रहा है, दोनों इमिसिबल है और उनको हम क्या कर रहे हैं, शेयर फोर्स अप्लाई करके कर रहे हैं कि एक सिस्टम में आप प्रेजेंट रहो. ओके, सो नॉर्मली दे फॉर्म द emulsion. So these are the classification of your liquid mixtures. Now these are some examples. Okay, so generally the number of doses form can be made up by using the liquid mixing or with the mixing of fluid phenomena. Okay, so here firstly you can see the preparation, then phase mixing examples. Okay, suspension में क्या होता है, solid liquid मिक्सिंग होता है, जिसका एग्जांपल है कैलामाइन लोशन. देन इमल्शन में क्या होता है, इट इज लिक्विड मिक्सिंग, क्योंकि इसमें क्या होता है, ऑयल और वाटर दोनों लिक्विड फेज है, तो दैट्स व्हाई इट इज लिक्विड मिक्सिंग. एग्जांपल इज द बेंजील बेंजोएट इमल्शन. देन सॉल्यूशन में सोल्यूबल सॉलिड लिक्विड, बी कॉम्प्लेक्स
elixir. देन सोल्यूशन में सोल्यूबल लिक्विड दैट इज अल्कोहल वाटर इलिक्सर. एरोसोल में क्या होता है, लिक्विड और गैस का मिक्सिंग होता है, जिसका एग्जांपल है इनहेलर, दैट इज जो अस्थमैटिक पेशेंट के लिए देते हैं ना, साल्ब्यूटामॉल इनहेलर. ओके, सो दीज आर द फ्यू एग्जांपल्स कि जिसमें हम मिक्सिंग ऑफ लिक्विड्स का फेनोमेना यूज करके हम कुछ डोजेस फॉर्म को बनाते हैं. ओके, नाउ नेक्स्ट इज द mechanism of your liquid mixing. So it is based on the 4 mechanism, that is bulk transport, turbulent mixing, laminar mixing, and last is the molecular diffusion. Okay, so generally bulk transport में क्या होता है कि the bulk material is transferred. Okay, so it can be carried out by using the paddles. Okay, सो जनरली नेक्स्ट क्या है, टर्बुलेंट मिक्सिंग. टर्बुलेंट मिक्सिंग में क्या होता है कि ड्यू टू वायलेंट टर्बुलेंस की क्या होता है, बहुत जोर से, बहुत हाई स्पीड से, हाई वेलोसिटी से एक वायलेंट और अनस्टेडी मूवमेंट होता है वाटर का या जो आपका फ्लूइड है उसका, तो उसको हम क्या बोलेंगे, दैट इज टर्बुलेंट मिक्सिंग. ओके, लैमिनार मिक्सिंग क्या होता है, टर्बुलेंट मिक्सिंग के अपोजिट की. टर्बुलेंट मिक्सिंग में वायलेंट और अनस्टेडी मूवमेंट होता है. अनस्टेडी मतलब क्या, जिसका डिरेक्शन ऐसा कोई डिफाइंड डिरेक्शन, डिफाइंड पाथ नहीं है, तो उसको बोलेंगे टर्बुलेंट, और जिसमें वेलोसिटी हाई होती है. पर उसके अपोजिट लैमिनार में क्या होता है, एक पर्टिकुलर फ्लो पैटर्न नहीं क्या वो फॉलो करेगा आपका फ्लूइड, मतलब जिसको हम स्ट्रीमलाइन मिक्सिंग भी बोलते हैं, मतलब एक ही डिरेक्शन में वो एक दूसरे से पैरेलल होके काम करेगा और जिसका पाथ डिफाइंड हो गया. सो दैट इज नथिंग बट द लैमिनार मिक्सिंग. एंड लास्ट वन इज द मॉलिक्यूलर डिफ्यूजन, दैट इज एट मॉलिक्यूलर लेवल द मिक्सिंग takes place, so that's why it is referred as the molecular diffusion. Okay, we will see it one by one. Now first is the bulk transport. So the name itself indicates that is bulk means क्या, large portion. ठीक है, so इसमें क्या होता है, bulk transport, लार्ज पोर्शन का मटेरियल को एक जगह से दूसरे जगह पे ट्रांसपोर्ट करते हैं, उसको हम बोलते हैं बल्क ट्रांसपोर्ट. ओके, सो द मूवमेंट ऑफ लार्ज पोर्शन ऑफ मटेरियल फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर इन अ गिवन सिस्टम. क्या होता है, एक सिस्टम में लार्ज पोर्शन का मूवमेंट होता है एक जगह से दूसरी जगह, तो उसे हम क्या बोलेंगे, वो ट्रांसपोर्ट को, दैट इज बल्क ट्रांसपोर्ट. ओके, सो दिस फॉर कैरिंग आउट दिस प्रोसीजर, दैट इज बल्क ट्रांसपोर्ट, द रोटेटिंग ब्लेड्स एंड पैडल्स आर यूज्ड. ओके, सो नेक्स्ट इज द टर्बुलेंट मिक्सिंग. टर्बुलेंट मिक्सिंग में क्या होता है, हाई वेलोसिटी, ध्यान में रखिएगा आप, और क्या होता है, वायलेंट अनस्टेडी मूवमेंट ऑफ योर वाटर. वायलेंट, देखिए डायग्राम में भी आप देख सकते हैं कि क्या होता है, एक स्मूथ पाथ फॉलो नहीं कर रहा है. ठीक है, एक पाथ फॉलो हो रही है, फिर फॉर्मेशन ऑफ ईडीज हो रहे हैं. ईडीज मतलब क्या होता है, दैट इज अ सर्क्यूलर मूवमेंट ऑफ योर फ्लूइड और वाटर. ठीक है, मतलब क्या होता है, सर्क्यूलर मूवमेंट हो रहे हैं, मतलब एक फ्लो पैटर्न आपका यूनिफॉर्म नहीं है, डिफाइंड पाथ नहीं है, फिर भी हाई वेलोसिटी की वजह से आपके दो लिक्विड आपस में मिक्स हो सकते हैं. ओके, सो इन टर्बुलेंट मिक्सिंग, दैट इज मिक्सिंग इज ड्यू टू द टर्बुलेंस. एंड व्हाट इज टर्बुलेंस, दैट इज वायलेंट or unsteady movement of your water. Okay, so turbulence is a function of velocity gradient between the two adjacent layer of liquid. जो ये first layer है, ये second layer है. ठीक है, इसमें velocity gradient, difference in the speed, difference in the velocity के basis पे वो क्या करेगा, mix करेगा. Okay, and ED is the swirling of a fluid and the reverse current created when the fluid is in turbulent flow regime. ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जब टर्बुलेंट फ्लो होता है, वायलेंट फ्लो आता है, हाई वेलोसिटी से क्या होता है, अनस्टेडी मूवमेंट आएगा आपके फ्लूइड को या आपके वाटर को, जिसके वजह से क्या होता है, देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ नंबर ऑफ ईडीज. ठीक है, तो ये नंबर ऑफ ईडीज जब फॉर्म होते हैं, मतलब क्या समझ में आता है, दैट इज रिवर्स करंट इज क्रिएटेड, जबकि आपका फ्लो रेजिमेन कैसे फॉलो होता है, दैट इज टर्बुलेंट फ्लो इज, और टर्बुलेंट फ्लो रेजिमेन इज फॉलो. ओके, then next is the laminar mixing. So it is opposite to the turbulent mixing. कि turbulent mixing में क्या हो रहा है, उसमें अनस्टेडी और वायलेंट मूवमेंट ऑफ वाटर आ रहा है, तो लैमिनार में क्या होता है, स्टेडी आता है. स्टेडी मतलब क्या, डिफाइंड पाथ, कि चलो एक पूरा ये एक उसके नीचे पैरेलल, थर्ड लाइन, फोर्थ लाइन, तो ऐसे नॉर्मल आपके फ्लूइड फ्लो करेंगे. सो इट इज डिफाइंड वन, दे रिमेन स्ट्रेट टू ईच अदर, एडजेसेंट लेयर पे स्ट्रेट रहेंगे. लेकिन टर्बुलेंट में क्या होता है, दूसरे लेयर पर वो जाके जा सकता है, लेकिन लैमिनार में नहीं, एक दूसरे को वो
पैरेलल रहेंगे, दैट इज इट विल ग्लाइड स्मूथली ओवर द एडजेसेंट लेयर. ओके, सो दिस इज रेफर्ड एज द लैमिनार मिक्सिंग, दैट इज मिक्सिंग ऑफ टू डिसिमिलर लिक्विड्स through laminar flow, that is applied a shear stretches in the interface between them. Okay, so in this mechanism layers fold back upon themselves. Mixing may also result in stretching of the fluid layers without any significant folding. इसमें folding नहीं होता है, इसमें eddies form नहीं होते. Okay, then last is the molecular diffusion, that is the mixing at molecular level in which molecules diffuse due to the thermal motion. ठीक है, थर्मल मोशन की वजह से डिफ्यूजन होता है एंड इट इज बेस्ड और इट कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय द फिक्स लॉ. फिक्स लॉ क्या बोलता है? फिक्स लॉ इज हाईली डिपेंडेंट ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट. ओके, सो इट स्टेट्स दैट द flux is proportional to the concentration gradient. Flux means what here? The process of flowing out. Okay, so it means the rate of flow or the flow is proportional to the concentration gradient, and here mixing is carried out at the molecular level. Okay, on due to the thermal motion. Okay, so these are the four mechanisms of your liquid mixing, that is bulk transport, जिसमें क्या होता है कि लार्ज पोर्शन एक जगह से दूसरे जगह पे जाते हैं जिसकी वजह से मिक्सिंग होती है आपके लिक्विड की. सेकेंड है टर्बुलेंट फ्लो और टर्बुलेंट मिक्सिंग. इसमें क्या होता है? डिफाइंड पाथ नहीं होता है, नंबर ऑफ ईडीज फॉर्म होते हैं जिसकी हाई स्पीड हाई वेलोसिटी होती है, जिसकी वजह से एडजेसेंट लेयर पे भी वो क्या करते हैं? फोल्ड बैक करते हैं, जिसकी वजह से आपकी मिक्सिंग होती है. थर्ड इज द लैमिनार मिक्सिंग, जिसका पाथ डिफाइंड होता है और जो पैरेलल या स्ट्रेट होते हैं अपने एडजेसेंट लेयर से, एंड इट कैन इजीली ग्लाइड और स्मूथली ग्लाइड ओवर द एडजेसेंट लेयर. ओके, एंड लास्ट वन इज द मॉलिक्यूलर डिफ्यूजन इन विच the mixing is carried out at molecular level and it can be easily explained by Fick's law, in which the flux is directly proportional to your concentration gradient. Okay, in these three diagrams you can see that this is the first layer, this is the second layer. ठीक है, ये पहला है मटेरियल आपका जिसको मिक्स करना है इस सेकेंड मटेरियल में. स्लोली स्लोली क्या होगा? ये मिक्स होगा और फाइनली ऐसा आपको मिक्सचर मिलना चाहिए जिसमें कि क्या, जितने ग्रे के प्रोपोर्शन है उतने ही आपके ब्लैक के हैं. ओके, सो दिस इज द आइडियल मिक्सिंग. ओके, सो नाउ नेक्स्ट इज द फ्लो पैटर्न ड्यूरिंग मिक्सिंग, कि कौन से फ्लो पैटर्न लिक्विड मिक्सिंग में फॉलो किए जाते हैं. सो फर्स्ट इज द टेंजेंशियल और सर्क्यूलर मिक्सिंग, देन द रेडियल, एंड third one is the axial or the longitudinal mixing. Okay, so first is that is tangential or circular mixing. means क्या? The name itself indicates that the circular motion, circular path में, और जैसे सर्कल का रोटेशन होता है उस डायरेक्शन में अगर मिक्सिंग होती हो, समझो यहाँ पे शाफ्ट प्रेजेंट है, पैडल्स प्रेजेंट है या इम्पेलर शाफ्ट प्रेजेंट है. ओके, जिसकी वजह से मिक्सिंग हो रही है. ठीक है, तो ये शाफ्ट के डायरेक्शन, इस शाफ्ट को अगर हम देखते हैं तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में सर्कुलर मूवमेंट में आपका लिक्विड फ्लो हो रहा है. तो अगर ये पैटर्न फॉलो करता है वो पर्टिकुलर फ्लूइड, तो उसको आप बोलेंगे टेंजेंशियल या फिर सर्कुलर फ्लो पैटर्न. ओके, सो एक्ट्स इन द डायरेक्शन दैट इज टेंजेंट टू द सर्कल ऑफ रोटेशन अराउंड द इम्पेलर शाफ्ट. ये इम्पेलर शाफ्ट के अपोजिट, मतलब क्या, ये इम्पेलर शाफ्ट के टेंजेंट पोजीशन पे ये प्रेजेंट है, ये फ्लो हो रहा है. ओके, सो इफ द शाफ्ट इज प्लेस्ड वर्टिकली और सेंट्रली, टेंजेंशियल फ्लो फॉलोज अ सर्कुलर पाथ, जैसे कि डायग्राम में है, सर्कुलर पाथ फॉलो करता है अराउंड द शाफ्ट एंड क्रिएट्स अ वॉर्टेक्स ऑफ द लिक्विड. एक वॉर्टेक्स क्रिएट करेगा वो. ओके, सेकेंड इज द रेडियल कंपोनेंट, दैट इज रेडियली क्या होता है कि इन द वर्टिकल पोजिशंस. ठीक है, ये क्या होता है? वर्टिकल पोजिशंस में इसका फ्लो होता है. यहाँ पे ये इम्पेलर, ये शाफ्ट प्रेजेंट है जो कि रिवॉल्व करेगा. ठीक है, रिवॉल्व करने के बाद जो सिस्टम में आपका लिक्विड प्रेजेंट है वो वर्टिकल डायरेक्शन में स्ट्रेट जाएगा और कहीं जाके डाउन बॉटम में फॉल करेगा. बॉटम में फॉल करने के बाद फिर से क्या होगा? उसका मूवमेंट कंटेनर वॉल के तरफ जाएगा और कंटेनर वॉल के तरफ जाने के बाद वो बॉटम में जाके, मतलब क्या हो रहा है? रोटेशन. दो अलग मटेरियल, दो अलग फेजेस क्या हो रहे हैं? आपस में मिक्स हो रहे हैं बाय द रेडियल मोशन, रेडियल पाथ फॉलो करके. ओके, एक्ट इन द डायरेक्शन दैट इज वर्टिकल टू द इम्पेलर शाफ्ट, देन एक्सेसिव रेडियल फ्लो टेक्स द मटेरियल टू द कंटेनर वॉल. जो एक एरो है ये क्या है? कंटेनर वॉल की तरफ जा रहा है, फिर बाद में बॉटम में जाके वो सेटल डाउन होगा. ओके,
So the material to the container wall and then material falls to the bottom and rotate at the mass beneath the impeller. So this is how the radial path is followed by the liquids. Then the third and last flow pattern, that is the axial component or the longitudinal component. Okay, तो इसमें क्या होता है, पैरेलल डायरेक्शन फॉलो किए जाते हैं. देखो आप देख सकते हो यहाँ पे क्या होता है, ये इम्पेलर शाफ्ट है तो पैरेलल डायरेक्शन में फॉलो किया जाता है. फर्स्ट क्या था हमारा कि टेंजेंशियल या सर्कुलर पाथ, तो उसमें क्या होता है, सर्कुलर इम्पेलर शाफ्ट के सर्कुलर मोशन में आपका फ्लो पैटर्न होता है तो उसको इसलिए सर्कुलर बोलते हैं. नेक्स्ट इज द क्या है, सेकेंड रेडियल. रेडियल में क्या होता है, वर्टिकल मूवमेंट होता है जिसको कंटेनर के वॉल पे ले जाएंगे वो पहले फ्लूइड को और बाद में बॉटम में उसको फॉल डाउन कर देंगे. ओके, और थर्ड इज द एक्सियल कंपोनेंट और लॉन्गिट्यूडल, उसमें क्या होता है, पैरेलल टू द इम्पेलर शाफ्ट. ओके, सो इनएडिक्वेट लॉन्गिट्यूडनल कंपोनेंट कॉजेज द लिक्विड एंड सॉलिड टू रोटेट इन द लेयर्स विदाउट मिक्सिंग. ओके, सो जनरली इट विल जनरेट द स्ट्रॉन्ग वर्टिकल currents, particularly when the suspending solids are present in the liquid. Okay, so next are the equipments used for the liquid mixing, जिसमें हम 3 equipments पढ़ेंगे, that is propellers, turbines and paddles. Okay, propellers कौन सा flow component follow करता है, axial, ऐसा जो parallel में रहेगा वो. turbines axial और tangential और both, तो एक तो parallel में नहीं तो फिर circular motion में या तो फिर दोनों, और आपका पैडल्स रेडियल और टेंजेंशियल, एक तो वर्टिकल डायरेक्शन में नहीं तो फिर सर्कुलर मोशन में. ओके, सो दिस वाज द फ्लो पैटर्न विच कैन बी फॉलोड बाय द फ्लूइड, ओके, और द इम्पेलर. देन नेक्स्ट आर द मिक्सिंग डिवाइसेस विच आर यूज्ड फॉर द लिक्विड मिक्सिंग. ओके, सो बेस्ड ऑन द शेप एंड द पिच they are classified into 3 types, that is propellers, turbines and the paddles. Okay, so what is the pitch? So it is defined as the distance the impeller would move through the fluid per revolution, कि कौन से डिस्टेंस पे, कितने डिस्टेंस पे वो पर रिवोल्यूशन आपका मूवमेंट उसका देंगे, उसके बेसिस पे. दैट इज नथिंग बट द पिच. ओके, सो फर्स्ट इज द प्रोपेलर्स. ओके, सो जनरली इट कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ ब्लेड्स बट द 3 ब्लेडेड डिजाइन इज मोस्ट कॉमन फॉर द लिक्विड. ओके, जो ये है ब्लू में जो 3 ब्लेडेड आपका प्रोपेलर प्रेजेंट होता है इसको हम प्रोपेलर्स बोलेंगे. ठीक है, इसमें 2 ब्लेड्स है, ये 3 ब्लेड्स, ये 4 और ये 5 वाला है, सॉरी 6 वाला है. ठीक है, तो ज़्यादा करके कौन सा प्रोपेलर यूज़ किया जाता है लिक्विड मिक्सिंग के लिए, दैट इज नथिंग बट द जिसको 3 ब्लेड्स होते हैं. ओके, सो ब्लेड्स मे बी राइट और लेफ्ट हैंडेड डिपेंडिंग अपॉन द स्लैंट ऑफ द ब्लेड. ओके, कि उनका स्लैंट कौन से डायरेक्शन में है, सो दैट वो डिपेंड रहता है कि आइदर वो राइट हैंडेड है या लेफ्ट हैंडेड है. ओके, सो साइज ऑफ द प्रोपेलर इज स्मॉल एंड मे इंक्रीज अप टू 0.5 मीटर्स डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ द टैंक, कि कौन से टैंक में हमें मिक्सिंग अचीव करनी है उस हिसाब से हम प्रोपेलर का साइज एक तो बढ़ा सकते हैं या तो कम कर सकते हैं. ओके, स्मॉल साइज प्रोपेलर्स एट टर्न with the full motor speed can rotate up to 8000 rotations per minute. Okay, small size का प्रोपेलर्स भी आपको 8000 rpm पर देगा आपका. ठीक है, उसकी स्पीड उतनी रहेगी. ओके, देन इन डीप टैंक 2 और मोर प्रोपेलर्स में बी अटैच टू द सेम शाफ्ट. अगर ज़रूरत रही तो ज़्यादा बल्क को आपको मिक्स करना है, क्वांटिटी ज़्यादा है और मिक्सिंग इफिशिएंसी आपको ज़्यादा चाहिए तो एक की जगह पे 2 प्रोपेलर एक टैंक में एक ही शाफ्ट पे आप अटैच कर सकते हो. ओके, दिस वर्क इन अपोजिट डायरेक्शन विच क्रिएट्स द हाई टर्बुलेंस, और जिसकी वजह से आपकी मिक्सिंग होगी. ओके, देन एडवांटेजेस ऑफ प्रोपेलर्स, इट इज यूज्ड व्हेन हाई मिक्सिंग कैपेसिटी इज रिक्वायर्ड. देन इफेक्टिव फॉर लिक्विड्स विच हैव मैक्सिमम विस्कोसिटी. ओके, ये एमसीक्यू में आ सकता है. ठीक है, कि प्रोपेलर्स का यूज कब होता है, जब आपको आपके लिक्विड का मैक्सिमम विस्कोसिटी कितना रहा, 2 पास्कल्स पर सेकेंड. ओके, और स्लरी अप टू 10% सॉलिड्स ऑफ फाइन मेश साइज. ठीक है, इससे ज़्यादा अगर स्पेसिफिकेशन हो तो आपको प्रोपेलर्स को कट करके टर्बाइंस या फिर पैडल मिक्सर के लिए जाना पड़ेगा. ओके, बिकॉज ये कहाँ तक आपका यूजफुल है, जब आपका लिक्विड की मैक्सिमम विस्कोसिटी 2 पास्कल पर सेकेंड हो. ओके, इफेक्टिव इन केस ऑफ द गैस लिक्विड डिस्पर्शन. ओके, देन मल्टीविटामिन एलिक्सर एंड disinfectants are manufactured by using the propellers. Then disadvantage, that is propellers are not normally effective with liquids
which have the viscosity greater than the 5 pascals such as the glycerin castor oil, ठीक है, जिसकी मतलब ग्लिसरीन की विस्कोसिटी ज़्यादा होती है। तो ऐसे केस में अगर एक मीडियम एक फेज आपका ग्लिसरीन हो तो उस टाइम पे आपका प्रोपेलर उतना यूजफुल नहीं रहेगा, क्योंकि उतने विस्कोसिटी में उसका ब्लेड्स मूव नहीं करेंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट आर द turbines. Okay, so a turbine consists of a circular disc to which a number of short blades are attached. Okay, so this is nothing but the turbine, जिसमें कि एक circular disc होती है, ये circular disc है जिसमें कि number of blades are attached. Okay, so the diameter of turbine range from 30 to 50% of the diameter of vessel. जो टैंक है उसका डायमीटर, उसके डायमीटर के कंसिस्ट, अगर उसका डायमीटर को हम ध्यान में रखें तो उसके हिसाब से 30 to 50% डायमीटर होना चाहिए आपका टर्बाइंस का। ओके, एंड इट विल रोटेट दैट इज एट लोअर स्पीड देन प्रोपेलर। प्रोपेलर का कितना था 8000 आरपीएम, इसका कितना है 50 to 200 आरपीएम। ओके, एंड दिस विल फॉलो दैट इज इट विल फॉलो द फ्लो पैटर्न रेडियल और टेंजेंशियल फ्लो। रेडियल में क्या होता है वर्टिकल डायरेक्शन में, ठीक है, और टेंजेंशियल में सर्कुलर मोशन में होता है। ओके, so near the impeller zone, the rapid impeller zone of rapid currents, high turbulence and intense shear is observed। मतलब मिक्सिंग का प्रिंसिपल क्या है, कौन से प्रिंसिपल पे बेस्ड टर्बाइंस का मिक्सिंग होता है, दैट इज हाई टर्बुलेंस, मतलब क्या नॉट डिफाइंड पाथ, एंड द इंटेंस शेयर इज जनरेटेड, जिसकी वजह से क्या होगा आपका मिक्सिंग होगा। ओके, देन एडवांटेजेस ऑफ द टर्बाइंस, effective for high viscous solutions with a wide range that is up to 7 pascal per second। so इसका क्या होता है कि जो आपके प्रोपेलर का डिसएडवांटेज था कि आपका 5 से अबव अगर विस्कोसिटी रहा तो प्रोपेलर्स को आप यूज़ नहीं कर सकते, सच एज एग्जाम्पल ग्लिसरीन का, पर उस ड्रॉबैक को ओवरकम कौन कर रहा है आपका टर्बाइन। ओके, दे कैन हैंडल स्लरीज विथ 60% ऑफ सॉलिड। की सपोज ऐसा स्लरी है जिसमें 40% वाटर रहा या 40% आपका लिक्विड रहा और 60% अगर सॉलिड प्रेजेंट रहा, मतलब विस्कोसिटी ज़्यादा हो गई, तो भी उन केसेस में आपका टर्बाइंस यूजफुल रहेगा। ओके, टर्बाइंस आर सुटेबल फॉर लिक्विड ऑफ लार्ज वॉल्यूम एंड हाई विस्कोसिटी, जिसका वॉल्यूम भी ज़्यादा रह सकता है और विस्कोसिटी भी ज़्यादा, तो ऐसे केस में आपको टर्बाइंस आपका यूजफुल है। ओके, इट गिव्स अ ग्रेटर शेयरिंग इफेक्ट दैन प्रोपेलर्स। इसमें फोर्स शेयर जो कि मिक्सिंग के लिए ज़रूरी है वो ज़्यादा ग्रेटर इफिशियंसी से हम अचीव कर सकते हैं। ओके, इट इज़ यूज्ड फॉर इमल्सिफिकेशन। देन नेक्स्ट आर द पैडल्स। ओके, so you can see in this diagram this is referred as the paddle. A paddle consists of a central hub with a long flat blade. Okay, इसका blade कैसा होता है long flat blade and it is attached generally vertically. इसका direction कैसा है vertical, ऐसे सीधा रहेगा ये attached. 2 blades or 4 blades paddles are more widely used. Okay, paddles rotates at low speed of 100 rpm and they push the liquid either radially or tangentially. एक तो vertical direction में move करेगा या तो फिर circular direction में. In deep tanks several paddles are attached one above the other on the same shaft. एक ही shaft पे आप एक से ज़्यादा पैडल को अटैच कर सकते हो. ओके, देन पैडल्स आर यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एंटासिड सस्पेंशंस, अगार एंड पेक्टिंग रिलेटेड परगेटिव्स एंड एंटी डायरियल मिक्सर्स. ओके, तो इसको आप यूज़ इसका प्रोडक्शन के लिए, ये डोजेस फॉर्म बनाने के लिए आप पैडल एज अ मिक्सिंग डिवाइस यूज़ कर सकते हो. ओके, एडवांटेजेस ऑफ पैडल्स, वोर्टेक्स फॉर्मेशन इज नॉट पॉसिबल विथ पैडल इम्पेलर्स बिकॉज ऑफ द लो स्पीड मिक्सिंग, मतलब आपका इफिशियंट मिक्सिंग फॉर्म हो सकती है. ओके, डिसएडवांटेजेस दैट इज मिक्सिंग ऑफ सस्पेंशन इज पुअर इफ द पैडल्स आर used. Okay, so these were the mixing devices for the liquid mixing. Now next is the Silverson mixer or the emulsifier. Okay, so first of all the diagram it can itself indicates that it has इलेक्ट्रॉनिक मोटर. ओके, जो कि आपका ये सिस्टम को रन करने के लिए लगेगा. उसके बाद एक शैफ्ट है. शैफ्ट क्यों है? माउंट, शैफ्ट पे माउंट होता है एक इलेक्ट्रॉनिक मोटर एंड आपका इमल्सिफायर हेड, जो इसका नाम क्या है? सिल्वरसन मिक्सर. दैट इज इमल्सिफायर मीन्स इट इज यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन और फॉर्मुलेशन ऑफ द इमल्शन. ओके, सो इसमें क्या होता है? एक शैफ्ट प्रेजेंट है जो कि आपके मोटर को पकड़े रखेगा और आपके इमल्सिफायर हेड को. द स्टैंड्स आर प्रेजेंट
ओके, एंड दिस इज इलेक्ट्रॉनिक मोटर जो कि आपके इमल्सिफायर को रन करेगा. ओके, सो principle, that is it produce intense shearing forces and turbulence by use of the high speed rotors. ओके, और मोटर, ये इलेक्ट्रॉनिक मोटर किस चीज़ के लिए है कि आपके सिस्टम को रन करने के लिए, आपके मिक्सर को रन करने के लिए, जो कि कौन से प्रिंसिपल पर बेस्ड है, प्रोडक्शन और जनरेशन ऑफ इंटेंस shearing force and the turbulence. Okay, then now the construction of your Silverson mixer, that is it is also referred as the homogenizer. It consists of a long supporting columns and a central portion. Central portion consists of a shaft which is connected to motor at one end and other to a head. Okay, ये emulsifier head है और ये motor. Head carries the turbine blades. अब ये head में क्या present है, turbine blades, जो हमने अभी mixing devices पढ़े हैं ना, propellers, टर्बाइंस और पैडल, उसमें क्या टर्बाइंस आर प्रेजेंट इन दिस इमल्सिफायर हेड्स. ओके, ब्लेड्स आर सराउंडेड बाय द मेश विच इज फर्दर एनक्लोज्ड बाय कवर हैविंग द ओपनिंग. सो दिस इज द कंस्ट्रक्शन. दैट इज क्या क्या है, यहाँ पे शाफ्ट प्रेजेंट है जो कि एक एंड पे उसके इलेक्ट्रॉनिक मोटर प्रेजेंट है और दूसरे एंड पे उसके इमल्सिफायर हेड प्रेजेंट है. हेड में क्या प्रेजेंट है, आपके टर्बाइंस जिस पे ब्लेड्स होते हैं. एक स्टैंड प्रेजेंट है और आपका शाफ्ट प्रेजेंट है. ओके, then working of this emulsifier. The emulsifier head is placed in the vessel containing the immiscible liquids. Okay, अब क्या होता है, सीधा जो आपकी हैंड मिक्सी होती है जो आप घर पे यूज करते हो, सेम प्रिंसिपल इज फॉलोड बाय दिस सिल्वरसन मिक्सर. ओके, इसमें क्या होता है, हैंड मिक्सी में आप हाथ में लेके वो मिक्सी को आपके फ्लूइड में, जो भी आप बर्तन है आपका, उसमें डाल देते हो और उसको मिक्स करते हो. स्टर सेम लाइक कि आपका जो भी वेसल है जिसमें आपको 2 फेजेस को मिक्स करना है, वो 2 फेजेस को आप वो वेसल में लोगे और उसमें आपका ये मिक्सर ऐड करोगे या उसको डीप करोगे. तो उसके बाद क्या होता है, जब आपकी सिस्टम शुरू होगी, आपका मोटर रन करेगा और वो टर्बाइंस ने क्या खुद को रिवॉल्व करेंगे इन दैट पर्टिकुलर फ्लूइड, जिसकी वजह से आपकी मिक्सिंग अच्छी हो जाएगी. और कौन से प्रिंसिपल पर बेस्ड है वो, या तो उसको शेयर जनरेट करेगा या तो फिर टर्बुलेंट फ्लो जनरेट करेगा. ओके, सो when the motor is started, the liquids are sucked through the center of the base and subjected to intense mixing action. Okay, centrifugal force expel the contents of the head with a great force through the mesh. Okay, पहले क्या करेगा, आपका मोटर स्टार्ट होगा तो the liquids are sucked into the head and centrifugal force lead to expel out that particular sucked liquids. Okay, as the result fine emulsion emerges through the opening of the outer cover. फिर रिजल्ट में क्या मिलेगा, आपका इमल्शन प्रिपेयर्ड होके आपका मिल जाएगा. ओके, द इनटेक एंड expulsion of the mixture setup the pattern of circulation to ensure the rapid breakdown of the bigger globules into the smaller ones. मतलब क्यों, स्मूथ और यूनिफॉर्म मिक्सिंग अचीव करने के लिए there is need of the breakdown of large globules into smaller ones. Okay, then uses that is used for the preparation of emulsion and creams of fine particles. ठीक है, then advantages, it is available in different sizes to handle the liquid ranges from few millimeters to several thousand liters. मतलब वेराइटी ज़्यादा है तो इसका different sizes में ये available है. So that is the advantage of your Silverson mixer. Can be used for batch operations as well as for continuous operations. Okay, लार्ज स्केल के लिए भी यूज़ किए जा सकते हैं और स्मॉल स्केल के लिए भी यूज़ किए जा सकते हैं. ओके, सो द डिसएडवांटेजेस आर देयर इज अ चांस ऑफ क्लॉगिंग ऑफ पोर्स ऑफ द मेश. जो कि मेश आपके टर्बाइंस के साथ नीचे सेट है तो उसका पोर्स क्लॉग हो सकते हैं. सो दैट्स व्हाई दैट इज द वन डिसएडवांटेज ऑफ योर सिल्वरसन मिक्सर. ओके, सो थैंक यू सो मच. So this is all about the chapter that is mixing. Thank you.